Brother Shivi John? Praise the Lord, brother. Yeah, please pray, brother. Brother, can you hear me, Brother Shivi John? Brother Shivi John? Brother Yes, Aaron? brother. Yes, Yeah, brother. please pray, brother. Please pray. I'm praying, you know. Yeah, please wait to pray. Oh. Shall we bow down our head and close our eyes? Look to Jesus for his guidance today. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day you have allowed us to come together in thy presence. We know it is a unique opportunity to enter into the throne room of our God for his grace and his guidance, his goodness, and his providence for the Church of God, as we are members of the living church, which you are building. We thank you, Father. It's a beautiful thing to know that our God is the Creator God, the God who has planned and purposed his entire universe for the glory of himself, not for anyone else. We thank you, Father. You are going to do a mighty work among us today. Though a few are joined, we know others are to join. Bring them together, Lord, so that we will be putting our mind and soul and spirit and strength into the loving, serving, worshipping group. As such, we will be your blessed people who will be standing in the gap with the people of this country and the world. As also we pray for our dear ones who are not able to come, lay down or even far away from our fellowship because of certain reasons. We pray for each one of them. All those who are willing to come in, make them to come so fast so that we'll be able to spend our time with you in corporate worship as well as prayer. We thank you, Father. You have allowed this in ages past. The saints of God, when they fasted and prayed, things happen and mighty things happen. As such, Lord, we are the people of this generation. Help us to really look to your face and be enshrined so that we will be powerful provision for the present generation, where we will be the light and salt for the people and the earth. We praise you and thank you, Father. You're going to do a good job in our own hearts by listening to your word, singing your praise. When we start praying, Lord, we know we are not uttering words in vain, but we are talking to our Father in heaven. Through the name of Jesus, we know that great things are going to happen among us. The church will be blessed, multiplied, and glorified so that others will know. And also our land, the people will fear about us because we are chosen people of God. We thank you, Father. When they look at us, and we know no wonder why they want to trouble us and also drive in persecution and all kinds of things to intimidate us because of their fear about us, Lord. So all these things are happening as an evidence. Your work is still on in this land of ours in India and Maharashtra, Mumbai and Borivali, Palghar and Naigaon and Boisar, different places, Lord, you have made it possible. Our fellowship spread all over India like beacons and lights in the high hills so that others can be directed to your presence. We thank you, Father. Your goodness is always with us. Your mercies are for every day new, and every morning we enjoy it, Lord. We thank you for this beautiful morning. We all will enjoy your presence. With the grace, we'll go forward, Lord.
because you have purpose in our life, the land of living. Many who prayed with us are with you, Lord. And we know that we are also one day will join them also. We in your presence, when you call us to be home with you. When this morning, our prayer time, be blessed. Pray for the brother who share the word so that we'll know you better. As Paul said, that I may know him and his power of resurrection, the fellowship in the suffering, and also the conforming to this death in our life, so that we will be receiving a resurrection that is worthy of a saint. We praise you and thank you, Father. We pray all these things in Jesus' most precious name. Amen. आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे सॉन्ग नंबर 406 हिंदी में और तेलुगु में 581। 406 in Hindi and Telugu 581. न छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था या न छोड़ो कभी। इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, पिता तुम्हें निश्चय देगा, पिता तुम्हें निश्चय देगा। स्वर से वो पूरा करेगा, स्वर से वो पूरा करेगा। कहा था प्यार प्रभु, कहा था महान प्रभु, न छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था न छोड़ो कभी। आराम के प्रेरित एक चेता होकर, आराम के प्रेरित एक चेता होकर निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना तूने सुनी, उनकी प्रार्थना तूने सुनी। हमारी प्रार्थना अब सुन, हमारी प्रार्थना अब सुन। न छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था न छोड़ो कभी। पत्र जब बंदी गृह में रहना था, पत्र जब बंदी गृह में पड़ा था, मंडली ने बहुत से प्रार्थना की, मंडली ने बहुत से प्रार्थना की। एक महान कार्य तब हुआ, एक महान कार्य तब हुआ। सबों ने आसर जमाना, सबों ने आसर जमाना। न छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था न छोड़ो कभी। यदि तुम मुझमें सदा बने रहो, यदि तुम मुझमें सदा बने रहो, मेरा वचन तुम्हें रहे, मेरा वचन तुम्हें रहे। जो चाहो मांगो मिलेगा,
न छोड़ो कभी। प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हियाव न छोड़ो कभी। जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, आनंद से हुआ करते हैं, आनंद से हुआ करते हैं। उनके मत में रहने वाले, उनके मत में रहने वाले, मद में हमारे आ जाओ, मद में हमारे आ जाओ। हियाव न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हियाव न छोड़ो कभी। आइए हम लोग प्रार्थना जाने से पहले एक वचन के भाग को पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार उसका 18 अध्याय। ये सब जाना पहचाना वचन है, हम लोग सुपरिचय से जानते हैं। हम लोग हैं वचन के द्वारा हम कुछ प्रेरित पाते हुए, प्रोत्साहित होते हुए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। 2 वचन पढ़ेंगे। पहला लूका की किताब 18 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 10, 3 वर्स 10, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर इस पढ़े वचन को आशीष करें और हम सबको प्रार्थना करने के लिए प्रभु प्रोत्साहन दे और तैयार करे। छोटी सी सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं। रात भर के जीवन को प्रभु जी आपने हमें सहायता किया, सारी थकावट को दूर किया, मीठी नींद दिया और प्रभु जी आपका अनुग्रह हुआ एक दिन की आयु को बढ़ाते हुए ये सब के समय में मंडली के न्याय मिलते हुए हमें प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने ऑनलाइन में सहायता किया। स्तुति बढ़ाई करते प्रभु जी, स्तुति के द्वारा हमारे हृदयों के, हमारे प्रोत्साहन को, हमारे प्रभु जी विश्वास को बढ़ाया प्रभु जी। और पिता प्रभु जी वचन के भाग को हमने पढ़ा है, पिता वचन के भाग को भी प्रभु जी हम ध्यान करने वाले हैं। प्रभु जी आप हमें सहायता करें और सब्र के समय में हमको हियाव देते हुए प्रभु जी प्रार्थना में थोड़ा समय क्यों न हो आपके चरण में रहने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए मैं तो इच्छा को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए सारी महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिताजी सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर वचन में जो भाग का पढ़ा, यहाँ पर हमने हियाव के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं। हियाव जो है आज हमारे विश्वासी के जीवन में बहुत ही है वो जरूरी है। हियाव हमने जो इस गाना भी हमने गाया यहाँ पर, जो हियाव न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हियाव न छोड़ो कभी। तो यहाँ पर 5 स्टैंजा है यहाँ पर गाना में। पहले स्टैंजा में कहता है, वहां पर कहता है एक होकर मांगो। जब तक हमारे विश्वासी के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में हम एक होकर नहीं मांगते हैं, हमारा हियाव हमारे पास कभी नहीं आएगा। हियाव तब होता है जब हम इस जग में तुम दो एकपन होकर मांगना है। पहला स्टैंजा कहता है एकपन होकर हमको मांगना है। दूसरा स्टैंजा कहता है, वहां पर कहता है कि एक चित्त होकर एक चित्त होकर आत्मा के आरंभ के प्रेरित एक चित्त होकर निरंतर प्रार्थना करते थे। एक चित्त होकर हमें निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर मतलब हियाव बांधते हुए दुख में, तकलीफ में, कष्ट में भी हमको
एक चित्त होकर हमें मंडली में, हमें परिवार में, हमें प्रभु के सामने आके हमें प्रार्थना करना है। और तीसरा स्टैंड में कहता है कि वहां पर मंडली ने बोझ के साथ प्रार्थना की। तीसरा स्टैंड में कहता है बोझ के साथ में। ये बोझ क्या है? बोझ हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, हमारे मंडली के प्रति, हमारे विश्वासियों के प्रति, हमारे प्रभु के जनों के प्रति। आज हमारे जीवन में ये बड़ा बोझ के साथ में हमें प्रभु के चरण में आना बहुत जरूरी है। ये हियाव तब होता है जब हम सब एक विषय के लेके, या मंडली के विषय को लेके, या हमारे देश के विषय को लेके, या हमारे मसीह के जो आत्मिक जो विषय को लेके, या तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय को लेके, जब जब भी कोई भी विषय को लेके हम जब प्रभु के चरण पे आते हैं, हमें बड़े बोझ के साथ में हमें प्रभु के चरण पे आना है। और तीसरा, चौथा में कहता है, वहां पर कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे। और ये चौथा बात हमारे हियाव हमारे जीवन में कब आता है? हम जब प्रभु के वचनों में बने रहते हैं। वचनों में बने रहने के द्वारा ही हमें हियाव आता है और हम प्रभु से प्रार्थना कर पाते हैं। और पांचवी बात वहां पर कहता है कि जहां 2-3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, आनंद से हुआ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, और हमारे ये साल का प्रतिज्ञा भी यही है, नहमीया 8:10 में, यहोवा का आनंद ही तुम्हारा दृढ़ है। ओ प्रियो, जब हमारे जीवन में संकट भरा हुआ जीवन है, तकलीफ भरा हुआ जीवन है, तो हमारे अंदर आनंद नहीं रहता है। वो ये आनंद अगर हमारे अंदर नहीं है, हम किसी के बोलने से, या किसी के डर से, या किसी प्रकार के एक मजबूरी से हम जब प्रभु के चरण में प्रार्थना के लिए आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा एक नहीं होता है। हमको बड़ी आनंद के साथ में, बड़ी प्रभु की जो आनंद को हमको मिला हुआ है, उस आनंद के साथ में हम जब आते हैं, तभी हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है ना। इसीलिए आज हम यहाँ पर हम पाते हैं कि हियाव हमारे जीवन में जरूरी है। क्यों मालूम? यहाँ पर नीति वचन की किताब में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब में, वहां पर मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए। नीति वचन 24 अध्याय में, 24 चैप्टर में, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय, वहां पर सुलेमान कहता है, लिखने वाला कहता है यहाँ पर कि हमारे जीवन में हियाव हम कब खोते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, तकलीफ आते हैं, कठिनाई आते हैं, तब हम क्या कहते हैं? हमारे जीवन में हियाव को हम खोते हैं। लेकिन यहाँ पर सुलेमान यहाँ पर कहता है, स्पष्ट कहता है यहाँ पर 24 अध्याय उसका 10 वचन में, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स उसका 24 चैप्टर वर्स 10, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब है, जब जब भी हमारे जीवन में विपत्ति आती है, संकट आती है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो हम हियाव को खोते हैं। तो वचन कहता है कि ऐसे समय में अगर मैं हियाव खोता हूं, तो हमारे में शक्ति कम रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में हियाव को बांधना जरूरी है। हियाव के साथ में प्रभु के चरण पे आना जरूरी है। और हियाव ही है हमारे जीवन में ऐसा जो हिम्मत हमको, जो हमें प्रभु के निकट में हमको लेके आता है। इसीलिए आज संसार में हम देखते हैं कि चारों तरफ से एक संकट भरा हुआ एक आज हमारा माहौल को हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि न्यूज में आजकल एक आदमी का न्यूज में बहुत सारे, अभी कल भी उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसका, उसके जो रायपुर में कल उनका एक वहां पर इनका वो सत्संग हुआ था। वहां पर उसका नाम है बागेश्वर बाबा करके, बागेश्वर करके उसका नाम है, बागेश्वर का धाम है उसका, मालूम होगा आप लोगों को। कल उसने कम से कम नेशनल मीडिया या अपना यूट्यूब पर सोशल मीडिया के सामने उसने लाइव टेलीकास्ट करते हुए उन्होंने चुनौती दिया था, पादरी को बुलाओ मेरे सामने, मौलाना को बुलाओ मेरे सामने, मैं उसको चुनौती देता हूँ, मैं उसके सामने। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट देते हुए उसने वहां पर चमत्कार का काम वहां पर किया था। वहां पर उसने, हकीकत क्या है इसको हमको मालूम नहीं है, मगर एक बात हमारे लिए जरूरी है आज, कि आज शैतान का जो काम है, शैतान का जो योजना है, आज बड़ी जोर के साथ में संसार में काम कर रहा है। और ऐसे समय में, है ना, हम कभी कभी इस बात को लेकर हम हियाव होते हैं, निराशा होते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा आज हम हियाव लेते हैं
कि हमारा जीवन में अगर इस ऐसे समय में अगर हियाव को खोते हैं तो प्रभु हमारे हमारे जीवन में क्या है उस समस्या से सामना करने के लिए उनको उनको हम सामना करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हम लोग नहीं कर सकेंगे, हम हार जाएंगे। इसीलिए आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि आज हमारे विश्वासी के जीवन में सभी के जो में समस्या है, कठिनाई है, किसी घर में बीमारी है, किसी घर में कमी घटी है, किसी घर में नौकरी का समस्या है, किसी घर में प्रभु आपस में परिवार के अंदर अनबन है, परिवार में अनेकता है, परिवार में एकता नहीं है, परिवार में आज बिखरा हुआ है। ऐसे समय के अंदर है ना, आज हमारे जीवन में हियाव के साथ में हमें क्या करना है, प्रभु के चरण में आना है। और हियाव कहाँ से मिलता है हमको, ये हियाव कैसे हमको मिलेगा? यहाँ पर देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे बुक ऑफ आइजिया की किताब 41 चैप्टर, द बुक ऑफ आइजिया 41 चैप्टर। हमको आपको हियाव कहाँ से मिलता है? ठीक है, और हमने जो पढ़ा वचन में इफिसी की किताब 3:10 में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको हियाव तो होता है, वो ठीक है, लेकिन और एक बात है, हमको आपको हियाव कहाँ से मिलता है? बुक ऑफ आइजिया 41 चैप्टर वर्स 6 and 7। मैं पढ़ता हिंदी में। बुक ऑफ आइजिया, यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय 41 चैप्टर वर्स 6 and 7। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है हियाव बांध। और 7 वर्ष में बड़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाले निहाय पर मारने वाले को यह कहा कर हियाव बांध रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वकील ठोक ठोक कर उसको ऐसा डीड करता है, वह स्थिर है। दो बातें हम पाते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर कहता है कि वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और इनमें से एक भाई से कहता है कि हियाव बांध। पहले बात है, यहाँ पर वचन हमको दिखाता है हियाव बांधने के लिए हमको इकट्ठा आना जरूरी है। एक भाई दूसरा भाई को इकट्ठा आना जरूरी है। आज हमारे भाई डोमिनिक आज केएम में एडमिट है, उनका बाईपास उनका अभी तक नहीं हुआ है। जब हम उस दिन विजिट करने गए थे, वहां पर बहुत निराश थे हमारा भाई डोमिनिक, हमारे बहन संगीता, उनके दोनों बेटे, है ना। ऐसी स्थिति में उनको हियाव कैसे बांधेंगे वो लोग? आज हमारा इसमें आज हमारा जिम्मेदारी क्या है? वो हम आज विश्वासी हैं, हम प्रभु के जन हैं, प्रभु के लोग हैं। आज हमारे हृदय के अंदर प्रभु की प्रेम हमारा भरा हुआ है। आज हमारे एक भाई केएम में, पूरा परिवार वहां पर लगा हुआ है, चारों के चारों वहां पर लगा हुआ है, पूरे निराश में है, हताश में है, उनके जीवन में उनको हियाव खो चुका है। ऐसी स्थिति में हियाव उनको कौन देगा? क्या हमारा काम नहीं उनको हियाव देने के लिए? क्या हमारा काम नहीं उनको उनके साथ जाने के लिए, उनके बात करने के लिए, उनको हियाव देने के लिए? क्या आज ये काम हम कर रहे हैं क्या हम लोग? ओ प्रियो, आज हमारा जीवन में अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्रियो एक खास करके एक विजिटिंग करके परिवार को जाके मिल के उसके कंधे में हाथ रखे, उनके बेटे के कंधे में हाथ रखिए, उसको हम दिलासा, ढाढ़स, हियाव तो जैसे दे सकते हैं ना हम लोग। वो हम करते हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं क्या? यहाँ पर कहता है कि वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से हर एक अपने भाई से कहता है कि हियाव बांध। वहां पर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे करता है, हियाव बांध, तू हिम्मत मत हार, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमारे जीवन में महान काम करेगा। और हमारे जीवन में जो हमने अनुभव किया है उस बात को जिक्र करते हुए, हमने जो अनुभव किया है उस बात को एक उदाहरण देते हुए हम अपने भाइयों से बात करेंगे। वो हियाव बांधना, डरना मत, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, हमारे जीवन में ऐसा कई बार अनुभव आया हुआ है। विश्वासी के जीवन में हमने हियाव नहीं हारा है। ऐसे अनुभव के साथ में हम जब एक दूसरे को हम लोग हिम्मत बांधते हैं, उनको हियाव देते हैं, तो देखो वहां पर क्या होता है। वर्स 7 में बड़ाई सुनार को हथौड़े से बराबर करने वाला, निहाय पर मारने वाला की यह कहकर हियाव बांध रहा है, जोड़ तो अच्छा है, अतः वकील ठोक ठोक कर। जोड़ तो अच्छा है, विश्वास तो अच्छा है, संगति में हम आते हैं, आराधना करते हैं, में से भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हर संगति में आते हैं, जोड़ तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, कीला ढीला है, उसको ठोकना है। उसको
जब कीला ढीला होता है तो वो हिलता है वो, तो प्रियो उस कीले को ठोकना है। मेरे घर में, हमारे घर में एक मिस्त्री ने मेरा टेबल बना के दिया था, वो बना के देखा 2-3 महीना तो अच्छा चला, अभी पूरा हिलता है वो। जोड़ तो है उसमें, हम काम तो करते हैं उसको, हम कुछ भी हम काम करते हो पूरा हिलता है पूरा, वो कहीं ना कहीं उसका कीला ढीला हुआ, तो कीला को हमको ठोकना है, उनको ठोक के उनको टाइट करना है, उनको मजबूत करना है, स्थिर करना है। वो ये काम कौन करेगा? हमारा प्रभु, हमारे प्रभु ने हमारे हृदय में ये काम करने का प्रेरित हमको किया हुआ है। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, ईश्वरीय स्वभाव के सौभाग्य हमको बनाया हुआ है, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर दिया हुआ है। हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का प्रेम है। तो जब मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है, प्रभु का प्रेम है, तो मेरा काम क्या है, मेरा फर्ज क्या है? जब भी कोई हमारे भाई बहन, हमारे परिवार, हमारे विश्वासी जन जब तकलीफ में होता है, कठिनाई में होता है, तो उसको क्या करना है? हियाव को उनको बांधना है, यहाँ पर उनको कील ठोकना है। कील ठोक के उसको क्या करना है? स्थिर करना है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे। हमने वचन पढ़ा है, जिस दिन मैंने आपने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया है, हमें हियाव होता है। सबसे पहली बात है हमारे जीवन में, आपके जीवन में हियाव का जो स्रोत है, हियाव का जो स्रोत है, स्रोत बोलते हैं तो उसका हियाव आने वाला जो जगह है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ते हैं हियाव आने के लिए हमको क्या करना है। पहली बात, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय। हमारे जीवन में हियाव बहुत जरूरी है। हियाव बांधने के लिए 5 प्रकार के जीवन को हमको यहाँ पर जल्दी से हम देखेंगे उसको, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 21 वचन। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हम और आपको हियाव आने का कब होता है प्रभु के सामने आने के लिए? जब मेरा मन हमें दोष नहीं देते हैं, मेरा विवेक मुझे दोष नहीं देते हैं। अगर मेरा विवेक कहीं दोष दे रहा है, मेरा मन में कहीं ना कहीं खोट है, तो हमें और आपको प्रभु के सामने आने का हियाव कतई नहीं होता है। हमने प्रभु का विश्वास तो किया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास हमारे हियाव का स्रोत है, वहां से हियाव आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने के बाद भी अगर मेरा मन के अंदर कहीं ना कहीं खोट है, मेरा हृदय, मेरा विवेक दोष दे रहा है, कचोट रहा है, नहीं किरण थापा ये गलत है, तूने गलत किया, गलत बात किया तूने, तू प्रभु के सामने नहीं आ सकता है, तो मैं कतई भी हियाव बांध के प्रभु के सामने नहीं आ सकता हूं। मैं सबसे पहली बात है मैंने प्रभु का विश्वास किया, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात है हमें और हमारे हृदय को, जो प्रभु का लहू ने हमको हृदय को धोया हुआ है, किसी मेरे हृदय में कोई प्रकार की, मेरा विवेक मुझे दोष देना नहीं चाहिए। अगर मेरा हृदय शुद्ध है, मन में कोई प्रकार के खोट कपट नहीं है, तो हमें और आपको प्रभु के सामने आने का हियाव होता है। अगर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कपट है, खोट है, किसी भाई के प्रति, किसी बहन, किसी परिवार के प्रति, मान हो सकता, ये तो 100% है कि मेरे और प्रभु के प्रति कोई खोट नहीं है, तो 100% सही है, मेरा प्रभु का रिश्ता तो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भाई बहनों के साथ में, मेरे परिवार के साथ में मेरे मन में खोट है, मेरा विवेक दोष देता है, तो कैसा हम हियाव के साथ में प्रभु के सामने आ सकते हैं? इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हियाव में आने के सबसे पहली बात है मेरा मन, मेरा हृदय किसी के प्रति दोष या खोट मेरे मन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें तुरंत ठीक ठाक करते हुए, उस बात को ठीक ठाक करते हुए, मेल मिलाप करते हुए, तभी हमारे जीवन में प्रभु के सामने आने का हियाव होता है। अगर मेरा मन में कपट है, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, किसी परिवार के प्रति, फिर भी मैं प्रभु के चरण पे आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हमारी प्रार्थना हमारे छत के ऊपर जाता ही नहीं है, घर के छत के ऊपर से। इसीलिए सबसे पहली बात है मेरे मन दोष देना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे
तो ही परमेश्वर के सामने आने का हियाव होता है। ये पहली बात। दूसरी बात है, दूसरी बात हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्ट बुक ऑफ एक्ट उसका 4 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय। पहला, अगर मेरे मन में कोई खोट दोष नहीं है तो ही मुझे प्रभु के सामने आने का हियाव होता है। और दूसरी बात है 4 अध्याय बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 31, 4 अध्याय वर्स 13, 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा और वह यह जाना कि ये अनपढ़ है, साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि उनको पहचाना यीशु के साथ रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि इनका हियाव कब हुआ। वहां पर उनके ये इस बात को सामना करने के लिए जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, तब उनके जीवन में क्या आया है, ये हियाव आया। यहाँ पर लिखा हुआ है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस हियाव को देखा। ये पतरस और यूहन्ना जो मच्छी मारने वाला मछुआरे लोग हैं, ये लोग, इनको कपड़ा पहनना ही बराबर कपड़ा पहनना भी नहीं आता है इनको, लेकिन उनका हिम्मत, उनका हियाव देखा उनको। ऐसा अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, ऐसा अनपढ़ व्यक्ति, अनसिविलाइज व्यक्ति जो कभी समाज को कभी उन्होंने उसको नहीं देखा, उनको ऐसे व्यक्ति, लेकिन जब उनके हियाव को देखा उनका, अरे बड़े बोल्ड हियाव के साथ में वचन को सुना रहे हैं वो लोग, डरते नहीं वो लोग, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं उनको। ये हियाव उनको कहां से आया? यहाँ पर कहता है कि उन्होंने जाना, पहचाना कि ये यीशु के साथ में थे। दूसरा, हमारे जीवन में हियाव का जो स्रोत है, हियाव आने का जो चैनल है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में जितना हम संगति करते हैं, हमारा फेलोशिप, हमारा संगति जितना जितना हम प्रभु के साथ में यीशु मसीह के साथ में करते हैं प्रियो, उतना उतना हियाव हमारे जीवन में होता है। संकट तो संसार में है हमारे जीवन के अंदर, आज परिवार में समस्या तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में है ही, और जब तक संसार में है हमारे जीवन में कष्ट तो ही है। क्योंकि एक वचन कहता है यहाँ पर बुक ऑफ, उसको हम नहीं पढ़ेंगे जानने क्योंकि समय निकल रहा है ना। तो ये अनपढ़ गंवार को ये हियाव कहां से आया? क्योंकि उन्होंने जाना कि वे प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। इसलिए दूसरा हियाव हमारे जीवन में तब आता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में बराबर संगति में लगा रहता हूं। ये हो गया दूसरा। तीसरा हम पढ़ेंगे हमारा हियाव को हमको कहां से आता है। एक वचन को पढ़ के हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। बुक ऑफ एक्ट उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 और 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा के परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तीसरा महत्वपूर्ण हियाव का जो चैनल है वो है प्रार्थना। आज हमारे जीवन में प्रार्थना जब इकट्ठा होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मांडलिक तौर पे, और इस बात को मैंने अनुभव भी किया है, आप लोग भी जानते होंगे, हर मंडली के अंदर, केवल मुंबई में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर प्रार्थना के विषय आता है, प्रार्थना का सेवा आता है, प्रार्थना का मीटिंग आता है। वहां पर लोग बहुत कम आते हैं, कम लोग आते हैं, और कम लोग आने के साथ साथ में हमारे में एक चित्त नहीं होते हैं, हमारे में एक मन नहीं होते हैं। इसीलिए शैतान भी जो है इसी क्षेत्र में हमको कमजोर करते हुए, इसी क्षेत्र में हमको कमजोर करते हुए आज हम विश्वासी, हम क्या है, आज बहुत ही कमजोर हो गए हैं। यहाँ पर कहता है कि जब वो चेले मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह हिल गया, भूकंप आ गया वहां पर, और उनको बोलता है हियाव के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनाते थे वो लोग। तीसरा जो हियाव का चैनल जो है वो है प्रार्थना। इसीलिए हमको आपको कहीं भी प्रार्थना करने का जो समय है हमको प्रभु को देना है। 2023 में 2020, 2021, 2022 3 साल तक नाइट प्रार्थना हमारा बोरेली मंडली का बंद था। 3 साल के बाद में 2023 में प्रभु ने अनुग्रह दिया, हमें वापस शुरू होने में हमने प्रभु ने सहायता किया। लेकिन बड़े दुख की बात है
कि प्रार्थना में बहुत कम लोग आए थे। क्यों? क्योंकि हमको आज जूम का आदी हो गया है। 6:30 का प्रार्थना है, 6:25 को उठो, प्रार्थना में बैठो, ये आदी हो गया। हम इतना आलसी हो गया हम लोग हैं, अभी हम घर से बाहर आना नहीं चाहते हम लोग। कितना बड़े दुख की बात है प्रियो। आज शैतान जो है हमारे जीवन में इसी प्रार्थना में विश्वास, प्रार्थना में इकट्ठा होने के लिए रोकता है आज। और मंडल की प्रार्थना में हार्डली 4 या 5 या 6 आदमी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना में इनको हियाव मिलता है, प्रार्थना में इनको बल मिलता है, प्रार्थना में इनको शक्ति मिलता है। वो प्रियो आज हमको जागना है। हियाव पाने का स्रोत 3 बातें हैं। पहला, हमने देखा कि हियाव का स्रोत, हियाव का जो चैनल जो है वो है हमारे जीवन में हमारे हृदय को विवेक दोष देना नहीं चाहिए। दूसरा चैनल है हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति हमको बने रहना है। और तीसरा, हमेशा मिल के जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको हियाव देता है। और चौथी बात मैंने पढ़ा, ये पढ़ा, एक दूसरे को, जब इस बात को हमारे जीवन में होता है तो एक दूसरे को हियाव बांधते हुए, पीठ थपथपे हुए, है ना, हम एक दूसरे को हियाव देते हुए आज की वर्तमान संसार के हालत में, दुख में, कष्ट में, कठिनाई में, संकट में, पीड़ा में, बीमारी में हम हियाव बांधते हुए आगे बढ़ते हुए प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे हमारे जीवन में ये हियाव को पाने के लिए, ताकि हम बड़े हियाव के साथ में हम प्रभु के सामने आते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना कर सके। ये छोटे से विचार का प्रभु हम सबों के लिए आशीष करे। ब्रदर मारी।